Good morning, students. I'm your English teacher, your Farzana ma'am, and here we have to begin or start with a new lesson, that is your lesson number 2, and it is the name, as you can read, the tsunami. You are ready with your book, children, and your pencil too in your hand. The tsunami. Before you read, look at the map of the Andaman Nicobar island given here. So, this is the map of your islands Andaman and Nicobar, and here are the different parts of it, and they have some exercise for you to do it. We will do this later on. They are telling us to read these sentences and they are telling us to correct it through our I think so to the map. मैंने मैप का देख के आपको ये करेक्शन करना है. I will not go for this right now. I am going to start with your reading of the lesson. So, move your page to or turn your page to the next, that is your page number 25. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. तो ये आपका बता रहे हैं कि इस जो लेसन में आप रीड करने वाले, इट इज़ द फैक्चुअल स्टोरी, यानी कि ये सच्ची घटना है आपकी जो कभी हुई थी. 26 दिसंबर 2004 में हुआ था. एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया था, मीन्स अर्थक्वेक आया था, ज़लज़ला जिसको बोलते हैं, जो सी के समंदर के नीचे हुआ था, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी में हुआ था. तो ये एक अर्थक्वेक जब अंडर द सी होता है तो नेचुरली तूफ़ान भी बोल सकते हैं कि यानी कि पानी भी पूरी तरह इधर उधर फैल गया है. तो ना ही खाली ज़मीन हिली है बट पानी भी पूरी तरह हमारे आसपास इधर जो जगह बताइए यहाँ पर आ गया है. और कहाँ कहाँ हिट हुआ था ये अर्थक्वेक? थाईलैंड में और पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान निकोबार आइलैंड में ज़्यादा हुआ था, और उसका जो कोस्टल एरिया है तमिलनाडु का वहाँ भी हुआ था. तो इधर की जो लोग जो सफ़र हुए थे और उन लोगों ने जो हिम्मत बताई और फिर जो जी गए उस ज़लज़ले से, उस अर्थक्वेक से, जो लोग जी गए बाद में अपने ऊपर कंट्रोल मीन सबको बचाते हुए वो खुद भी जी गए. लेट्स रीड द इंसिडेंट and find what happened with them when they were in the big trouble. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. So here what is the meaning of archipelago? It is a group of many islands and the surrounding sea. तो जब हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं और उसके आसपास के जो पानी का इलाका होता है उसको हम आर्किपेलागो बोलते हैं. ओके, और लघु archipelago. Then let's see the incident. Who was there? The characters. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachchal. तो ये एक मैन का नाम है Ignatius. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. तो ये सब क्या हुआ अभी कि 6 बजे के करीब मॉर्निंग में इग्निशियस जो एक मैनेजर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो वो कहाँ पर रहते हैं? कच्चल में रहते हैं. उनकी वाइफ ने उनको 6 बजे करीब मॉर्निंग में उठाया और उन्होंने बोला कि मुझे एक अर्थक्वेक जैसा महसूस हुआ है कि आ गया है. तो इग्निशियस ने पहले क्या करा, उन्होंने टेलीविज़न सेट को टेबल से उठा के नीचे फ्लोर पे रखा, ज़मीन पे रखा, ग्राउंड पे रखा, और फिर पूरी फैमिली बाहर, घर के बाहर जल्द में रश्ड आउट, यानी कि जल्दी से निकल पड़ी.
When the tremor stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the three other children who came with him were saved. तो उनके जो घर में लोग थे, क्या हुआ उनके साथ? इट्स अ वेरी सैड हैपनिंग्स वी आर गोइंग टू रीड इन दिस इंसिडेंस. तो एक बहुत बड़ा ट्रैमर हुआ, यानी कि व्हेन द ट्रैमर स्टॉप्ड, यानी कि उधर का जो अर्थक्वेक का जो हिलने का जो ज़मीन जब हिल रही थी वो थोड़ी जब शांत हुई, हिलना बंद हुआ. ट्रैमर मतलब जो इंसिडेंट हो रहा था हिलने का ज़मीन का, उसको ट्रैमर बोलते हैं. तो वो जब स्टॉप हुआ, सी ओवर अ स्लाइट शेक अर्थ ट्रैमर्स, तो जब अर्थ हिलता है तो वो ट्रैमर बोलते हैं उसको. वो जब स्टॉप हुआ है तो उन्होंने क्या देखा कि उनके जो आसपास की जो सी है वो पूरी तरह राइज होके आ रही थी, राइजिंग हाई अप, और उनकी तरफ ही बढ़ती जा रही थी वो सी की बड़ी बड़ी जो लहरें होती हैं. इन द केओस एंड कन्फ्यूजन. केओस मतलब आप जब बेतहाशा कहीं पर भागते हो एक साथ, हल्ला गुल्ला बोल के, शोरो गुल के साथ, और कुछ समझ नहीं आता है उस भीड़ भड़के में, उसको हम केओस बोलते हैं. और कन्फ्यूजन हो जाता है, यानी कि क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो कन्फ्यूजन जब हो रहा है, कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, तो ये दोनों इज़ द सिनोनिम. केओस में क्या होता है, हम बेतहाशा इधर उधर भागते हैं. और क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहे कन्फ्यूजन की वजह से. ओके, उस कन्फ्यूजन में उनके दो जो बच्चे थे, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन इग्निशियस के, उन्होंने किसका हाथ पकड़ लिया? कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, यानी कि नाना जो बोलते हैं मैटर्नल फादर, यानी कि मम्मी के डैडी का हाथ पकड़ लिया. एंड मदर्स ब्रदर, और मम्मी के भाई का हाथ पकड़ लिया. किसने? दो बच्चों ने. एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और जहाँ से पानी आ रहा था उसके दूसरी तरफ वो लोग भाग रहे थे. ही नेवर सॉ देम अगेन, और इन चारों लोगों को इग्निशियस कभी नहीं मिल पाए ज़िंदगी भर. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उनकी वाइफ भी उस पानी की लहरों में यानी कि चली गई थी. पानी उनको ले चला था, यानी कि पानी की बड़ी सारी लहर आई थी और उनको डुबा के ले गई. ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड, और जो इग्निशियस के साथ जो तीन बच्चे थे वो ही सेव हो पाए. लेट्स रीड फर्दर. टर्न योर पेज 26. Sanjeev was a policeman serving in the Kachal island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife, his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. तो आपका I'll just explain up till here children. तो एक और फैमिली के बारे में हम रीड कर रहे हैं. वी आर रीडिंग ऑफ वन मोर फैमिली. एक पुलिस मैन है जिनका नाम संजीव है. वो उधर कच्छल में आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में सर्व करते हैं, यानी कि उनकी जो ड्यूटी है वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में सर्व करते हैं और कच्छल एरिया में उनकी शायद पोस्टिंग होगी तभी. ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ. उन्होंने अपने आप को, अपनी बीवी को, अपनी छोटी बेबी को बचा तो लिया
from the waves. But then जब जैसे ही उन्होंने किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी from the wife of John, जो गेस्ट हाउस के कुक थे, जॉन गेस्ट हाउस के कुक, उनकी वाइफ की आवाज़ें जब उनको सुनाई दे रही थी तो वो पानी में उन्होंने जंप किया उनको बचाने के लिए, बट वो दोनों ही उस पानी में यानी कि स्वेप्ट अवे हो गए, पानी उनको आगे बढ़ाता ले गया. स्वेप्ट अवे मतलब आगे बढ़ गए. दे कुडंट सेव बोथ ईच अदर, दोनों भी नहीं बच पाए. 13 ईयर ओल्ड मेघना जो हैं वो 13 साल की हैं, वो भी डूब गई. किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ और उनके आसपास के जो लोग थे. कुल मिला के 77 अदर पीपल वर ऑल्सो स्वेप्ट अवे, वो भी डूब गए थे उस पानी में. शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और ये जो मेघना है 2 दिन तक वो सी पर फ्लोट कर रही थी. किस चीज़ पर? वुडन डोर पर. उस डोर को उन्होंने पकड़ रखा था और 11 मरतबा उन्होंने हेलीकॉप्टर को, जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं ऊपर आते जाते हैं, उन्होंने देखा, बट किसी को वो नज़र नहीं आई. फिर आखिर में वो शोर पे आई, वेव्स ने उनको शोर पे ले पटका, मीन्स थ्रू वेव्स, और वो फिर उसी सी शोर पे एक थोड़ी बेहोशी की हालत में मिली. ओके. Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Rahila's home was in Non-Cowrie Island. The family had gone there to celebrate Christmas. तो ये फैमिली जो है इनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि अलमाज जावेद जो है 10 साल की हैं, वो कहाँ पर पढ़ती थी? कॉन्वेंट स्कूल में जिसका नाम था कार्मेल. और कहाँ पर था वो? पोर्ट ब्लेयर में. और उनके फादर जो था उनका पेट्रोल पंप था, और उनकी मम्मी का जो था राहिलाज होम था was in Non-Cowrie Island. तो द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. तो पूरी फैमिली जो अलग जगह पे रहती थी, बट इधर जहाँ पर ये अर्थक्वेक आया है यहाँ ये लोग क्रिसमस मनाने आए थे. When the tremor came early in the morning, the family was sleeping. Almaz's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with a great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. Almaz's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to help. A wave uprooted the tree and they too were washed away. Almaz saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. When she woke up, she was in hospital in Kamorta. From there, she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. So, आपका ये first part of the lesson is over here completed. Let's understand if you haven't understood, but according to my reading, it's very easy English over here, but here and there some words are there. So, I'll make you understand. तो अलमास और उनकी फैमिली जो है क्रिसमस मनाने आई हुई थी इस एरिया में जहाँ पर ये अर्थक्वेक हुआ है. और जब मॉर्निंग में उनको ये ज़मीन हिलती हुई समझ आई, केम अर्ली इन द मॉर्निंग, फैमिली जो थी तब सो रही थी पूरी फैमिली. अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड. अलमास के फादर जो थे वो उठे थे उसी वक्त और उन्होंने बाहर की तरफ देखा कि पानी जो है जो आया हुआ था वो पीछे की तरफ जा रहा था, यानी कि रिसीड मतलब पीछे की तरफ जा रहा था. यानी कि वो समझ गए कि एक बहुत बड़ा तूफान का आने का साइन है ये. ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स. अब पानी बहुत ग्रेट फोर्स में आने वाला है. ही वोक एवरीवन अप. उन्होंने सबको उठाया और सबको सेफर प्लेस पे लेके जाने की कोशिश में थे ही थे.
As they ran, जैसे ही वो लोग भाग रहे थे, उनके ग्रैंडफादर जो थे, किसी चीज़ से उनका सर टकराया, समथिंग, वो नहीं पता किससे, और वो गिर गए। और अल्मास के फादर उनको बचाने के लिए, उठाने के लिए भागे, बट दोनों ही उस पानी में, उस बड़ी जो जायंट है, जायंट मतलब बहुत बड़ी लहर में वो लोग डूब गए। दे बोथ वर स्वेप्ट अवे, यानी कि वो लहर उनको ले गई। अल्मास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग, उन लोग कहाँ पर थे? एक बड़ी सारी कोकोनट ट्री के पत्ते को पकड़ के खड़ी हुए थे दोनों, आंटी अल्मास की और उनकी मम्मी, और चिल्ला रहे थे कॉलिंग फॉर हेल्प। बट इतने में हेल्प आने से पहले बहुत बड़ा जो लहर आई और उनका पूरा जो पेड़ था जिस पे वो लोग पत्ते को पकड़े हुए थे, पूरा ही पेड़ उखाड़ के वो पानी उन सबको ले गया। और अल्मास ने ये सब देखा, उनको फिर एक वुड फ्लोट नज़र आया, उसके ऊपर वो चढ़ गई और उसी पे वो बेहोश हो गई। फेंट मतलब बेहोश होना। और जब वो उठी तो हॉस्पिटल में उनको मीन्स उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया, जो कहाँ था? कर्मोर था। फ्रॉम दैट शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वो पोर्ट ब्लेयर में आई क्योंकि वो उधर ही रहती थी। और उसके बाद वो कभी नहीं बोली किसी से, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था उनके सामने वो बहुत ही भयानक था। इट वॉज अ वेरी टेरिबल इंसिडेंट विच वी कांट एलैबोरेट। बोलते हुए, रीड करते हुए ही हमें वी कैन शेड आवर आइज। Okay children, so you can read the meaning over here, traumatized, greatly shocked and distressed, यानी कि वो बहुत बड़े शौक में थी क्योंकि उनके साथ अब उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं है। Okay, comprehension check. Say whether the following are true or false. Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. Yes, true. Sanjeev made it to safety after the tsunami. तो संजीव सेफ्टी में थे, नो फॉल्स. ही वॉज स्वेप्ट अवे विथ हिज फादर, नो विथ जॉन्स वाइफ, यस. देन मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, नो शी वॉज ऑन द सी शोर पे फेंटेड मिली थी वो. Then Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. तो उनको ये महसूस हुआ था, realized हुआ था. So you are going to find it out this. I'm not sure children because my reading, I was deep in my reading. So you have to find it and I'll get back with this answer soon. Her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to. Yes, this is true. I'll read this page children. Tilly Smith, a British school child, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? So here एक इंसिडेंट है, इसमें इंसिडेंट से पहले ये टिली स्मिथ जो है एक स्कूल चाइल्ड है, ब्रिटिश स्कूल गर्ल है वो, और इन्होंने बहुत सी लाइव्स सेव की थी सुनामी में. उस सुनामी में जहाँ कौन सी एरिया में, फुकेट बीच इन थाईलैंड. और इनका जो अवार्ड भी मिला है उनको, बट इनका इंटरव्यू नहीं होने दिया इनके पेरेंट्स ने. तो ये डिसीजन उनका क्यों लिया, ये लेट्स सी बाय रीडिंग दिस. Now here is a story from Thailand. The Smith family from southeast England was celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7-year-old. Their parents were Penny and Colin Smith. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. The water was swelling and kept coming in.
Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. तो ये पैनी जो है थाईलैंड से है, ये छोटी गर्ल है, 10 साल की ही बच्ची है ये, गर्ल फ्रॉम what to say, a pocket beach, was able to save a school girl. No, I'm sorry, the age is being mentioned. I hope so. Let's see the reading again. Yeah, she is 10 years. So my reading was correct here and there. It's a reading, and in reading you tend to forget what you read it up. Okay. So same day था 26 December 2004 जिसका हम इंसिडेंट रीड कर रहे हैं. अब ये दूसरे साइड ऑफ एरिया में थाईलैंड में, तो इनकी फैमिली जो है क्रिसमस मनाने आई थी रिसोर्ट में, और बीच पे थे ये लोग. और टिली स्मिथ वॉज, ये बच्ची का नाम टिली स्मिथ है, और उनके पेरेंट्स के नाम क्या है, पैनी एंड कॉलिन स्मिथ. तो ये जब उन लोग उधर बीच पे थे तो इन्होंने देखा कि बीच छोटा छोटा होते जा रहा है, क्योंकि पानी उनके करीब होते जा रहा था, अर्थक्वेक आ चुका था. ओके, और पानी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, वॉज स्वेलिंग, यानी कि पानी उछल रहा था एंड उनके पास आते जा रहा था. और आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. और ये जो हमारी स्मिथ हैं, दैट इज़ योर टिली स्मिथ, इनको ये पता ही नहीं चला था कि क्या हो रहा है आसपास. I will stop my reading and explanation up till page number 27. We'll meet in our next video, that is our next lecture, children. Read your lesson and underline the words if you have not understood, and you can ask me on my WhatsApp. Yes, children, till then you are going to keep reading as I say again and again, and children, you have to learn your poem by heart. Okay, bye children.